हाँ जी, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will study an important novel by Toni Morrison, that is Beloved. This novel is part of MA English Semester 4th subject Post-Colonial Literature 2. So first we will begin with an introduction to the author and the novel. So Toni Morrison, whose time period was from 1931 to 2019, was a famous African American writer. She wrote deeply about the lives, pain, strength of black people in America. Okay, and her stories give a voice to the people who were ignored or forgotten by history. She won the Nobel Prize in Literature in 1993 and Pulitzer Prize for Beloved in 1988. Her novel Beloved is based on the true story of Margaret Garner, a woman who escaped slavery and killed her child to save her from being captured again. सो उनका नावल बिलव्ड एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी मार्गरेट गार्नर नेम की एक वुमेन की है जो स्लेवरी से भाग गई थी और उसने अपनी बच्ची को मार दिया ताकि फिर से उसे कोई भी स्लेव ना बना सके। ओके, एंड ये बुक दिखाती है कि स्लेवरी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि परिवार, लव एंड आइडेंटिटी को भी तोड़ देती है। सो द नॉवल शो हाउ स्लेवरी डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट लाइव्स बट आल्सो फैमिलीज, लव एंड आइडेंटिटी. It is a powerful book about trauma, memory and freedom. Set during the post-Civil War era in America, after 1865, Beloved tells the haunting story of Sethe, a formerly enslaved black woman who lives in a house at 124 Bluestone Road with her daughter Denver. Even though the Civil War has ended and slavery is officially abolished, the psychological trauma of slavery still controls the lives of those who suffered it. Okay. सो बिलव्ड की कहानी अमेरिका में सिविल वॉर के बाद के समय की है एंड ये कहानी एक ब्लैक वुमेन सैथे की है जो पहले गुलाम थी, स्लेव थी. ओके, एंड अब वो अपनी बेटी डैनवर के साथ 124 ब्लूस्टेन रोड नाम के घर में रहती है. भले ही गुलामी ख़त्म हो चुकी है लेकिन स्लेवरी का मानसिक दर्द जो ट्रॉमा है वो अब भी सहते और बाकी लोगों की ज़िंदगी को परेशान करता है. ठीक है जी. Sete had escaped from a Creole plantation called Sweet Home, but when the slave catchers came for her, she made a terrible choice. She killed her infant daughter rather than let her be टेकन बैक इनटू स्लेवरी. सो सेठे एक जगह पर काम करती थी जिसका नेम था स्वीट होम एंड वो वहाँ से भाग आई थी. लेकिन जब उसे पकड़ने लोग आए तो उसने बहुत ही टेरिबल डिसीज़न लिया. उसने अपनी छोटी बच्ची, अपनी डॉटर को मार दिया ताकि वो फिर से गुलाम ना बन सके. ओके, एंड उसने ये काम प्यार और डर में किया था लेकिन ये काम उसकी आत्मा को हमेशा दुख देता रहा. So this act, though done out of love and fear, haunt Sethe forever. Okay, as a result, the spirit of her dead daughter starts to haunt the house. So इसके बाद उस मरी हुई बच्ची की आत्मा घर में भटकने लगती है. Okay, and later a mysterious young woman calling herself Beloved appear. सो कुछ समय बाद एक रहस्यमयी लड़की आती है जो खुद को बिलव्ड कहती है एंड सेथे को लगता है कि ये वही मरी हुई बच्ची है, उसकी डॉटर है जो अब इंसान के रूप में वापस आई है. ओके, सो शी बिलीव शी इज़ द गोस्ट ऑफ हर बेबी रिटर्न्ड इन ह्यूमन फॉर्म. बिलव्ड वांट्स लव, अटेंशन एंड कंट्रोल. ओके, सो बिलव्ड बहुत प्यार, ध्यान और सेथे पर पूरा अधिकार चाहती है. ठीक है जी. Beloved represent not just a ghost but the living past, a painful memory that refuses to go away. So beloved केवल एक आत्मा नहीं है बल्कि वो पास्ट है, बीता हुआ उसका समय
अतीत है जो कभी नहीं जाता। ओके, एंड वो आत्मा सेथे को तंग करती है, उसे सब याद दिलाती है और चाहती है कि सेथे सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी को दे दे। ओके, एंड सेथे को अपने किए पर बहुत पछतावा है और वह धीरे धीरे खुद को खोने लगती है क्योंकि वह बिलव्ड को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। सो बिलव्ड represent not just ghost but the living past, a painful memory that refuses to go away. The ghost wants Sethe to suffer, to remember, and to give herself completely in return for what was taken. Sethe, filled with guilt, slowly loses herself in trying to please beloved. Okay, so, through other characters like Poldy, a former slave who wants to help Sethe heal, and Baby Suggs, Sethe's mother in law and spiritual guide, the novel explores how slavery breaks human identity but also how healing and surviving are possible. सो नॉवल में कुछ और भी करेक्टर है जैसे पॉल्डी एंड बेबी सग्स जो उसकी सास है। सो इन करेक्टर्स के ज़रिए नॉवल दिखाता है कि स्लेवरी इंसान की पहचान को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी इंसान धीरे धीरे ठीक हो सकता है और ज़िंदा रह सकता है। ओके, next is treatment of race in Toni Morrison's Beloved. So race is the central theme in Beloved. Morrison shows how racism and slavery hurt people not physically but also mentally and emotionally. So Beloved एक ऐसा नॉवल है जो दिखाता है कि ब्लैक पीपल के साथ अमेरिका में कैसे बुरा व्यवहार किया गया। टॉनी मॉरिसन बताती है कि स्लेवरी और रेसिज्म सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी बहुत दुख देता है। ओके, स्लेवरी मेक्स सेथे बिलीव दैट डेथ इज़ बेटर देन स्लेवरी फॉर हर चाइल्ड। शी सेज इट वॉज एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू बट शी हैड नो राइट टू डू इट। सो सेथे जो इस नॉवल का मेन करेक्टर है वो एक गुलाम महिला थी। ओके, एंड वो गुलामी से भाग आई थी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन उसका जो पास्ट है वो उसे आज भी डराता है। ओके, उसने अपनी डॉटर को मार दिया ताकि वो गुलामी में ना जाए। वो कहती है कि ये करना सही था लेकिन उसे करने का अधिकार नहीं था। सो इससे पता चलता है कि स्लेवरी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। ओके, सो दिस शोज दैट हाउ कंफ्यूज्ड एंड ब्रोकन स्लेवरी मेड हर। मॉरिसन शोज दैट इवन व्हेन स्लेवरी एंड्स द पेन कंटिन्यूज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर करेक्टर दैट इज़ पॉल डी। वो कहते हैं दे चेन अप द मैन, दे टेक अवे योर मैनहुड, कि वो मर्दों को जंजीरों में बांधते हैं और उनकी मर्दानगी छीन लेते हैं। सो इससे पता चलता है कि गुलामी ने ब्लैक जो मेल थे उनकी इज्जत और पहचान भी छीन ली थी। सो ही रिप्रेजेंट द ब्लैक मैन who lost their identity and pride due to racism. Okay, Morrison gave importance to black boys. She said, I wrote my first novel because I want to read it. Okay, she wanted to tell the stories that were missing from American history, stories of pain, survival, dignity of black people. सो टॉनी मॉरिसन ने कहा था कि मैंने ये कहानी इसलिए लिखी है क्योंकि मैं खुद इसे पढ़ना चाहती थी। हाँ जी, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द नरेटिव टेक्निक्स। सो टॉनी मॉरिसन यूज स्पेशल वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग टू शो ट्रॉमा एंड पेन। शी डजंट टेल द स्टोरी इन अ स्ट्रेट लाइन, इंस्टेड she used flashbacks, memories and nightmares to take us into the minds of her characters. सो टॉनी मॉरिसन की कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो फ्लैशबैक, मेमोरीज़ एंड नाइटमेयर्स दिखाकर हमें करेक्टर्स के मन में ले जाती है। ओके, सो फर्स्ट इज़ अबाउट फ्लैशबैक्स। सो कहानी बार बार पास्ट में जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेथी को अपनी बेटी डैनवर को जन्म देने और गुलामी से भागने की बातें याद आती है। ओके,
So the novel moves back and forth in time. This shows how the past is never gone. Sethe's painful memories come back again and again. One example is her memory of running away from Sweet Home and giving birth to Denver with the help of white girl जिसका नेम था एमी डेनवर. ओके, एंड एमी डेनवर से प्रभावित होकर ही उसने अपनी बेटी का नेम डेनवर रखा था. ओके, नथिंग एवर डाइज, मॉरिसन राइट्स, शोइंग हाउ द पास्ट स्टेज अवे विद अस. सो कुछ भी पूरी तरह मरता नहीं है, यानी पुराना दर्द हमेशा साथ रहता है. नेक्स्ट इज अबाउट मेमोरीज. So the characters are full of painful memories. Paul D remembers being locked in a box for months. So Paul D को याद है जब उसे एक डिब्बे में बंद किया गया था. And Sethe remembers the milk stolen from her. सेथे को याद है कि कैसे उसका दूध छीन लिया गया था. वो कहती है सम थिंग्स गो पास ऑन, सम थिंग्स जस्ट स्टे, कि कुछ चीज़ें चली जाती है लेकिन कुछ हमेशा रह जाती है. ओके, nightmares. So the ghost of beloved is like a nightmare that comes alive. She speaks in broken words and behaves strangely, showing that she is not just a person but a memory that can be forgotten. Okay, so beloved की आत्मा जैसे कोई बुरा सपना है. वो अजीब बोलती है, अजीब बिहेवियर करती है. वो कहती है मैं beloved हूँ और वह मेरी है. I am beloved and she is mine. This shows her possessiveness and how the past control the present. यानी पास्ट आज को पूरी तरह पकड़ कर रखता है. ओके, टॉनी मॉरिसन ने मैजिकल रियलिज्म का उपयोग किया है, यानी सच और कल्पना को मिलाकर दुख को और ज़्यादा महसूस कराती है. So these techniques shows that slavery was not just history, it is a living pain that comes back again and again. Morrison used magical realism to make this emotional truth feel real. Okay. Next is relevance to post-colonial literature. So Beloved fits perfectly in post-colonial literature because it gives voice to the subaltern, the people who were silenced in history, especially black women like Sethe and Baby Suggs. सो ये नॉवल पोस्ट कलोनियल लिटरेचर पर पूरी तरह फिट बैठता है. ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जिन्हें हिस्ट्री ने चुप करा दिया था, जैसे सेठे और बेबी सग्स जो उसकी सास थी. ओके, ये दिखाता है कि गुलामी ने लोगों को कैसे तोड़ा. गुलामी ख़त्म होने के बाद भी मन की जंजीरें रह जाती है. लोग अपनी आइडेंटिटी फिर से बनाना चाहते हैं जिसे गुलामी ने छीन लिया था. सो इट टेल्स द ट्रू हिस्ट्री ऑफ व्हाट स्लेवरी फेल्ट लाइक, नॉट फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम द हर्ट्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इट. इट शोज हाउ इवन आफ्टर स्लेवरी एंड्स mental chains still remain. It explores how identity must be rebuilt after years of being treated like property. The novel asks a big questions. How can a person become whole again after being broken by slavery? That is the question many post-colonial writers ask too. So ये नॉवल एक बड़ा सवाल पूछता है कि गुलामी से टूटने के बाद इंसान फिर से ठीक कैसे हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन. टॉनी मॉरिसन्स बिलव्ड इज़ नॉट जस्ट अ नॉवल, इट इज़ अ वाउंड एंड अ वॉइस. सो ये सिर्फ नॉवल या कहानी नहीं है, ये दर्द और उम्मीद की कहानी है. टॉनी मॉरिसन दिखाती है कि पास से भागा नहीं जा सकता. ओके, उसे समझना और याद रखना ज़रूरी है. So Toni Morrison's Beloved is not just a novel, it is a wound and a voice. It tells us that past must be faced, not forgotten. Through race, memory, trauma and powerful storytelling, Morrison makes us feel the pain of those who were enslaved and strength of those who survived. Sette's journey shows how healing is possible but difficult. Okay. टॉनी मॉरिसन कहती है कि ये कहानी बुलाने के लिए नहीं है. दिस इज़ नॉट अ स्टोरी टू पास ऑन. वी मस्ट रिमेंबर सच स्टोरीज़ सो दैट दे आर नेवर रिपीटेड. कि हमें ये कहानी याद रखनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा दर्द
दोहराया ना जाए। ओके, सो ये नावल बहुत ही इमोशनल, आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत दुख भी एक राजनीतिक सच्चाई है। आज़ादी हमें मांगनी नहीं, खुद लेनी पड़ती है। ओके, सो इट इज़ डीपली रेलिवेंट इन पोस्ट colonial स्टडी because it shows how personal is political, how history lives in the body, and how freedom must be claimed, not just given. Okay, सो आई होप दिस नॉवल इज़ क्लीयर टू यू। जेकर मेरे कोल कोई गलती होगी होवे दैन प्लीज़ मैनू माफ़ करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।